Okay. So this was the example, last lecture. Find the number of atoms in 100 gram of helium. First. So we had seen gram atomic mass. With atomic mass expressed in grams, we call it gram atomic mass, and it represents mass of 1 mole of the substance. यदि हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक मास है 4. Yeah? If you are writing for AMU, that means it represents 1 atom. If you are writing for grams, it represents 1 mole atom. 1 mole atom means 6.022 10 to the power 23 atoms. Avogadro's number of atoms. 1 mole means this many particles, this many atoms. Yeah. So helium 4 mu 1 atom, 4 grams 1 mole atom. आते हैं हम फर्स्ट केस पे. If a 100 gram is given, I think mu पहले दिया होगा, ग्राम बाद में दिया होगा, मे बी पॉसिबल ऐसा कुछ ना हो. I don't remember exact sequence. यस सर, वैसे दिया था. पहले AMU दिया था, उसके बाद 100 ग्राम हीलियम दिया, उसके बाद 100 ग्राम एटम ऑफ हीलियम दिया. So 100 AMU of helium. Here 100 AMU of helium. 4 AMU means 1 atom. So 100 AMU means how many atoms? 25. 1 atom. 8 AMU 2 atoms. 12 AMU 3 atoms. Again the total AMU upon 4 25 atoms. So हमने 100 AMU बोला, इसने 25 मल्टीप्लाई किया, 25 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this will be 25 atoms. Is there any doubt in this thing? No, sir. No, sir. No, sir. Sir, one time can you repeat? Sorry. Sir, one time can you repeat? First, Can you repeat, sir? देखो चलो मैं पहले इस पे आ जाता हूँ एक बार. When atomic mass expressed in grams, atomic mass 4 unit for helium, when expressed in grams, it represents mass of 1 mole of the substance. So 4 gram 1 mole atom. 100 gram मतलब 25 into 4, यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 into 1 mole, that is 25 mole. 25 into 6.02 10 to the power 23 atoms. So 100 gram means how many atoms? 25 moles of atoms, or 25 into Avogadro's number of atoms. क्या सेकंड वाला पार्ट समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. सर. हमें Yes, sir. ये दोनों चीजें यदि समझ में आई हैं लास्ट लेक्चर में, तो ये दोनों केस हम इजीली कर पाएंगे. जब भी एटॉमिक मास को AMU में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा. When atomic mass expressed in grams, it represents mass of 1 mole atom. AMU 1 atom, grams 1 mole atom. 100 gram है तो मोल में चले जाओ. 100 gram 100 by 4 25 मोल atom. 100 AMU है तो एटम में चले जाओ. 100 by 4 atom. Is that okay now? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं हम थर्ड पर. 100 gram atoms. Gram atoms together. Gram atoms together, that means moles of atom. हमें इस word को इंटरप्रेट करना है moles. Clear? 1 gram, जब भी ग्राम एटम एक साथ होगा, ये moles of atom को रिप्रेजेंट करेगा. 100 gram atom means 100 moles of atom. Gram atom, gram molecule, gram ion together. These three represent moles of atom, moles of molecule, moles of ion. बोला गया 3 gram molecule, 3 moles of molecule. Clear? लास्ट लेक्चर के जैसे ही तुम देखोगे तुम्हें सारी चीजें मिलेगी. क्या क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ayush, Gopal, Sir, Manas, is that okay? sir, Sir. Yes. सर वो लास्ट वाले को फिर 100 into 6.022 into 10 to the power 23 लिखेंगे ना? हाँ, मतलब 100 मोल्स बोला है. अब मोल्स को तुम एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो,
1 mole equal to how many particles? This many particles. इसका मल्टीप्लाई करो Yes, तो sir. मोल सर्च होगा। एक ही बात है, मैं बोल रहा हूँ 6.02 10 to the power 23 एटम्स और 1 मोल एटम, एक ही बात है। तो आगे डिपेंड्स, ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ दिस और इन टर्म्स ऑफ दिस, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर sir. आपने लास्ट क्लास में तो थर्ड का आंसर 2500 लिखा था। बाद में चेंज किया था सर। बाद में नो सर, करेक्ट वो भी आप किया था उसे। mistake हुई थी, आपने वो 100 ग्राम वो किलो मोल इंटरप्रेट कर दिया था। छोटा था। हाँ उसको करेक्ट कर, पहले एक्चुअली मैंने उसे किलोग्राम जैसे इंटरप्रेट कर लिया था सर शायद। अभी जो किया है, क्या हमने थर्ड ऑप्शन 100 ग्राम एटम्स ही लिखा था, यदि 100 ग्राम एटम्स लिखा था तो जो आज के है वो राइट आंसर। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो okay, calculation of moles. First case when the weight of substance is given, second case when number of particles are given. मैं दोनों फॉर्मूले एक्सप्लेन भी करता हूं, पहले कॉपी कर लो।
देखो कैसे फॉर्मूलों का डिराइव किया गया है, हाउ दे आर डिजाइन डिराइव्ड. फर्स्ट केस व्हेन वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, एक सिंपल सा लॉजिक लेता हूं मैं, हीलियम वाला ही यदि हम एग्जांपल लें, 4 ग्राम means 1 mole. Here for helium 8 grams 2 mole. 100 grams क्या किया हमने, वेट को लिया ग्राम्स में अपॉन उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया, 25 moles. So when you represent weight in grams, molar weight in grams, it gives mass of 1 mole. So number of moles, weight in gram upon molar weight. Here हमें निकालना है ऑक्सीजन के मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 100 डिवाइडेड बाय 16, ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. बाय चांस तुमसे पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज देयर इन 100 ग्राम. यदि O2 के मोल्स पूछे गए तो O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32. So this is the molar weight which can be atomic mass as well as molecular mass. So it depends for which we need to determine number of moles. हमें एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो एटॉमिक मास, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं फॉर द मॉलिक्यूल्स, then we need to take molecular mass here. So weight in gram upon molar weight ले लिया हमने यहाँ पर, mass of 1 mole atoms or 1 mole molecule. Second है number of particles. ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? We are saying 6.02 10 to the power 23 particles means 1 mole. अब मुझे बताओ 3.01 10 to the power 23 particles होंगे तो हाफ मोल. तो हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, इसको 1 मोल लेकर यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल. हमसे पूछा गया एक टोटल हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का वेट है लेट्स से 20 ग्राम. क्लियर? सो 100 ग्राम में कितने मार्कर होंगे, 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मार्कर. नंबर ऑफ मोल्स, टोटल पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, वेट अपॉन वेट ऑफ 1 मोल. तो 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसको डिवाइड किया, 1 मोल का जो भी वेट होता है उससे डिवाइड. क्या हमें इतना समझ में आता है दोनों फॉर्मूले? यस सर. यस सर. यस सर. Yes, sir. Sir. सर हम मोल का वेट कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे नहीं, ये तो हमें याद रखना है. लास्ट लेक्चर में 1 to 20 याद है, पूरे एटॉमिक मास लिखा रखे हैं हमने. Yes, sir. यस सर. यस सर. तो क्या है, ठीक है. और फिर मैंने बोला भी था याद कर लेना, काफी यूज आएगा. मैं बार बार हर केस में नहीं बताऊंगा इन्हें. Yes, sir. सर ग्राम्स में कौन सा वेट लिखना है? मतलब सर मोलर वेट तो मास लिखना है ना? मोलार मास मोलार वेट लिखना है, अब उसको किसी के यूनिट में नहीं लिखना है. तुमसे पूछा गया व्हाट इज द मोलार वेट ऑफ नियोन, यू विल रिपोर्ट आंसर 20. अब किस यूनिट में लिखना हो तो किसी में भी लिख दो, उससे क्या मतलब, मैं तो नंबर लिखना है ना वहां पर. गॉट इट? मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ और समझ में आएगा. पहले मैं थर्ड केस भी बता देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ मोल का. थर्ड, it is valid only for gas at STP or NTP. सर एसटीपी और एनटीपी एक ही होता है क्या?
Yes, for the calculation purpose, both are same. There is a very slight difference between these two. वो हमें future में जब use आएगा तब Sir, मैं what is बताऊंगा। STP and NTP? Okay, sir. Sorry? Sir, what is STP and NTP? बता रहा हूँ, मैंने भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, वो तो किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बता दिया, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम कॉपी करो। सर वो प्रेशर है एंड प्रेशर। यस, प्रेशर, PRESSURE। चलो, खूब कॉपी कर लिया होगा सभी ने। Third formula to calculate for the calculation of number of moles is valid only for, this formula is valid only for gases, only at STP or NTP condition. STP means standard temperature pressure, NTP means normal temperature and pressure. Both are same as of now. There is a very small difference. That small difference we need to use in 1-2 topics जो कि 12th में आएगा, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। And the standard temperature is 0 degree Celsius. The standard pressure is 270 Kelvin. Sorry, pressure is 1 atmosphere. Temperature is 0 degree Celsius or 270 Kelvin. Both are same in degree Celsius in Kelvin. So किसी ने भी कहा NTP condition और STP condition means temperature and pressure are fixed. This is the value of pressure. This will be the value of temperature. इस टेम्परेचर और प्रेशर पर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं गैसेस के, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। नाउ व्हाट इज दिस 22.4? हर गैस का 1 मोल का वॉल्यूम इस कंडीशन पर, एनटीपी एसटीपी कंडीशन पर इतना होता है। लेट्स से तुम्हें दे रखा है 11.2 लीटर, so 11.2 liter by 22.4, half mole will be there. So this is the property for 1 mole in liter. If you are taking in milliliter, तो इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो, बाय 1000 कर दो। ऊपर वॉल्यूम को मिलीलीटर लेना है, 22,400 मिलीलीटर। इज दैट ओके? अब क्वेश्चन आता है ये वॉल्यूम कौन आया, कैसे पता चला? इवन वी कैन परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट टू गेट दिस वॉल्यूम 22.4। इसका एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया जा सकता है। वी कैन आल्सो कैलकुलेट मैथमेटिकली, वो भी हमारे सिलेबस में जो आगे देखेंगे। क्या सर डिनोमिनेटर मिलीमीटर में रहता है क्या? सॉरी, डिनोमिनेटर मिलीमीटर में। डिनोमिनेटर तो एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं है। यदि तुम ऊपर मिलीलीटर में ले रहे हो तो वॉल्यूम इन लीटर को क्या करोगे तुम? वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाय 1000, तो 1000 नीचे आ गया। दिस इज द नंबर। नीचे हमें यूनिट्स लिखने की जरूरत ही नहीं है कुछ। सर प्रेशर तो Okay, sir. पास्कल में रहता है ना, प्रेशर पास्कल में मेजर किया जाता है, तो एटम में प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, Atmosphere. पास्कल में, टोर में, एमएम ऑफ एचजी में बहुत सारे यूनिट्स है जिसमें मेजर किया जा सकता है। तो वन ऑफ द कॉमन यूनिट इज एटमॉस्फेयर।
If you want to write in Pascal, तो इसका conversion कुछ ऐसा होगा. So it can be measured in various units, depends on our requirement. PSI बहुत सारे units होते सर लेकिन हमेशा 1 एटमॉस्फेयर वाले डालने हैं ना, क्योंकि हैं. 101325 डालेंगे तो अलग वैल्यू आ जाएगा ना. एक मिनट, तुम एक तो कंफ्यूज हो रहे हो. पहली चीज तो मुझसे पूछा गया कि रूम का टेम्परेचर क्या है. मैं बोल रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस, तुम बोल रहे हो 298 केल्विन. कौन सही है कौन गलत है सर? ये वाला डालेंगे. अरे डाल, ये तो वैल्यू मेंशन की गई है, व्हिच कैन बी मेंशन इन एनी यूनिट. मैं कहां पर, क्या इस फॉर्मूले में तुम्हें कहीं पे प्रेशर दिख रहा है क्या, कहीं टेम्परेचर दिख रहा है क्या? ये तो मैंने बताया, एसटीपी कंडीशन इज दिस प्रेशर. ये डालने का तो कहीं है ही नहीं ना अभी. समझ में आया डिफरेंस क्या है? आई एम नॉट गिविंग यू Yes. फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल. फॉर्मूले में तो अभी प्रेशर आया ही नहीं है. तुमसे पूछा गया प्रेशर कितना है, ये बोलो 760 mm ऑफ एच बोलो, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है उसको. अब कहीं फॉर्मूले में डालना है तो डिपेंड करेगा उस फॉर्मूले में कौन सी यूनिट्स यूज कर रहे हैं हम. क्लियर? ओके सर. So VC means more volume ना. वीसी कहाँ है यार? वो ये ब्रैकेट है. ब्रैकेट वीसी कहाँ दिख रहा Sir है? bracket. हाँ. Last formula is valid only for gas. These two formula are valid for anything. काफी बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दो फॉर्मूले को इक्वेट करके सॉल्व करना होता है. वेट दे दिया, मोलार वेट दे दिया, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया, तो इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके सॉल्व करना है. क्लियर? सर वो 22.4 काय की वैल्यू है? वेट ऑफ 1 मोल, ऊपर वेट नीचे वेट. समझना ना, एक सिंपल सा लॉजिक है. ये नंबर ऑफ मोल से नंबर मींस यूनिटलेस. वेट नीचे वेट ऑफ 1 मोल. पार्टिकल्स, number of particles in 1 mole. volume of 1 mole. Simple. Clear? Yes sir. Yes sir. Weight calculate करना है, number of moles into molar weight. Number of particles calculate करना है, number of moles into Avogadro's number. Volume of gas calculate करना है, number of moles into 22.4 into m into na into 22.4. सर वो जो लास्ट फॉर्मूला है हम सिर्फ वो कंडीशन में क्यों यूज कर सकते हैं कि वो Sorry. लास्ट फार्मूला जो है उसको हम एसटीपी या फिर एनटीपी में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिक वैल्यू सिर्फ उसके लिए वैलिड है, एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पर. इफ यू चेंज द कंडीशन देन वी हैव सम डिफरेंट फार्मूला. क्वेश्चन आता है सर उसके लिए कौन सा फार्मूला है, तो उसके लिए फार्मूला होता है ये वाला, PV = nRT. ये कहां से आया? ये आइडियल गैस इक्वेशन से आया. वी हैव वन चैप्टर आइडियल गैस, तो हम इसे डिटेल में देखेंगे. क्लियर है अभी? यस सर. चलो कुछ Sir. क्वेश्चंस देता हूं बेस्ड.
Find the number of moles in the following. सर Hmm. सर वो 10 to the power 23 होगा ना? क्यों? क्वेश्चन में दिया गया है। हो सकता है क्या? ये एवोगैड्रोस नंबर थोड़ी दिया है। ये तो मैंने अपने नंबर ऑफ जितना भी मैं लेना चाहूँ उतना ले लूंगा। सर फर्स्ट का 2 मोल्स में आ रहा। Five I moles. want Sir, first wait, of 5 wait moles for है। 1 minute. Wait for 1 minute. I want all the answers simultaneously ABC in chat box. मैं तीनों आंसर A this B this C this chat box में लिख। सर सेकंड वाले में O2 लेके वो एक क्वेश्चन ये मैं तुम्हारे एंड से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऑक्सीजन लिखा है सर, हमें कैसे पता कि ऑक्सीजन एटम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? आपने Sir, O या O2 ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो फिर इसका आंसर ये होता है इन आवर एटमॉस्फेयर इन आवर नेचर ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन व्हाट फॉर्म? ये O फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फिर क्या है यहाँ पे 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लिखते हैं तो एटम के मोल्स निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स लिखते हैं तो मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालते हैं। नथिंग इज गिवन, जनरलाइजेशन व्हाटएवर एग्जिस्ट इन नेचर, सो इट शुड बी O2। क्लियर? स्पेशली मैंने इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन लिखा, मैंने O2 नहीं लिखा था कि हमें पता होना चाहिए। Check the answer as well as calculation. And then ask your doubt. कौन सा पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना है? राइट है सर सब राइट है। ठीक है। Yes, sir. योगिनी, विवेक, वरद, एक्सप्लेन करना है। यस सर। हाँ, मतलब पूछ रहा हूँ कि समझ में आया नहीं आया, जिन बच्चों Yes, का नाम sir. लिया था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, n अपॉन na वाला फॉर्मूला यूज करना है। एवोगैड्रोस नंबर, पार्टिकल्स आर गिवन दिस। चलो दो सेपरेट कर लेते हैं।
3.01 upon 6.02 1 by 2 24 by 23 ऊपर जाएगा प्लस साइन बिकम्स माइनस साइन सो 10 ये समझ में आता है ना ये कैसे किया है 10 to the power x 10 to the power y 10 to the power minus y क्या ये सभी को पता है यस सर Yes, sir. Yes, sir. ठीक पता होना चाहिए बट मे बी पॉसिबल कि तुम 9 से 11 में डायरेक्ट आए हो तो कुछ बच्चों का मिस हो गया और 10 देखा जाए तो 9 से 11 में डायरेक्ट ही प्रमोट हुए बट होप 10 अच्छी बात ये थी कि 10 बोर्ड एग्जाम तब कैंसिल हुए जब बोर्ड एग्जाम आने ही वाले थे यदि पहले से कैंसिल हो जाते तो हमें पता होता हम पढ़ते ही नहीं तो हमने पढ़ाई तो की है कम से कम डजंट मैटर एग्जाम हुआ नहीं हुआ मार्क्स कितने आ रहे हैं वो मैटर ही नहीं करता जो नॉलेज गेन किया वो बहुत ज्यादा मैटर करता है पूरे तुम Deleted actually syllabus. realize करो। ये तुम एक्चुअली अब रियलाइज भी करोगे जेई प्रिपरेशन में सर एक सेकंड और 10 आ गया 1/2 5 मोल्स ऑक्सीजन O2 लेना है एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 फॉर O2 इट इज 32 32 ये सिंपल लास्ट वाला फॉर्मूला बोलो कौन क्या बोल रहे हैं सर वो Yes. एक्चुअली बोर्ड की एग्जाम हुई नहीं लेकिन स्कूल ने बहुत एग्जाम ली थी ये हाँ वो मुझे पता है कि बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए बट स्कूल वालों ने प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा कुछ सब कुछ किया है तुमने भी होप अपने से अच्छा किया इसलिए हमें थोड़ी टेंशन कम थी अदरवाइज बोर्ड यदि 4 महीने पहले से पता हो जाता कि कैंसिल हो गए तो जो 4 महीने लास्ट के पढ़ने वाले होते हैं वो तुम पढ़ते नहीं और हमें और ज्यादा बहुत सारी चीजें 10th की भी कवर करनी पड़ती स्टिल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल सर ऐसा नहीं कि हम Sir. basic सिलेबस भी तो था सर और तुम्हारे एंड से भी तुम्हें लगता है स्टार्टिंग के फेज में कि सर ये नहीं समझ में आया पता है आज मुझसे कोई पूछेगा सर ये कैसे लिखा है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बट इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी आफ्टर 1 मंथ सर ये कैसे लिखा है तो फिर मैं तुम्हें डांटूंगा क्योंकि एक महीने में तुमने क्या किया ये कैलकुलेशन इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उसमें इन्वॉल्व हो तुमने क्या नहीं समझा तो जब तुम्हें कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो डेफिनेटली तुम्हें पूछना है उसी टाइम ठीक है सर मुझे ऐसे Sir. क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने तो कहाँ से मिलेंगे आप रेफर कर ये क्वेश्चन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इतने मिलेंगे कि तुम जब आईआईटी का एग्जाम भी होने वाला होगा ना तब भी मैं बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन रेजोनेंस की तरफ से तुम्हें मिल चुके होंगे कि सर पूरा तो नहीं हो पाया किसी का भी नहीं हो पाया अभी तुमसे जो 2 साल सीनियर बच्चे हैं जिनका आईआईटी का एग्जाम होना है अभी 2 मेंस हो गए हैं 2 मेंस अटेम्प्ट एक एडवांस अटेम्प्ट बचा है उन बच्चों के पास भी रेजोनेंस का इतना स्टडी मटेरियल इतना क्वेश्चन का कलेक्शन रखा हुआ है कि वो भी पूरा नहीं हुआ है अभी इस वीक में मेरा एक्सरसाइज हर बुकलेट में 3 एक्सरसाइज होते हैं 1 2 3 जो कंपलसरी क्लास में हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर ड्यूरिंग दैट चैप्टर उसके बाद फर्दर 4 एक्सरसाइज होते हैं जेईई मेंस पैटर्न टॉपिक वाइज टेस्ट जेईई एडवांस पैटर्न टॉपिक वाइज टेस्ट हाई लेवल प्रॉब्लम एचएलपी और एक होता है ओलंपियाड क्वेश्चन तो एचएलपी में अब डिस्कस कर रहा हूं उनका सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर आईटीसी में एचएलपी नहीं है हैंडआउट है सिर्फ उसका बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ये जो तुम्हें ऐसा बुकलेट मिलेगा ना रेजोनेंस का ये बुकलेट में थ्योरी तो बहुत कम और ऐसे ऑलमोस्ट 2 साल में 100 बुकलेट्स मिलेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स इसमें एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज 3 खुला हुआ है इसके पहले 1 2 था फिर 3 है इसके बाद आंसर की आती है क्लियर उस आंसर की के बाद फिर क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चंस के बाद फिर होते हैं प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर एचएलपी मतलब ये एपीएसपी के नाम से होते हैं वो 4 एक्सरसाइज एडिशनल प्रॉब्लम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस तो बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा कलेक्शन क्वेश्चन स्पेशली फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस तो हमें उस चीज का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें स्टार्टिंग के 2-3-4 वीक में भी पॉसिबल तुम्हें थोड़ा फील हो कि हमें तो बहुत लाइट वर्क है इतना नहीं तो स्टार्टिंग में होता है बट मैं ये लिख के दे रहा हूँ वहां से 2 वीक के बाद तुम्हारे पास इतना चीजें करने को होगी तुम मतलब 24 आवर्स भी बैठे रहोगे तब भी तुम्हें मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो रहेगा ही और आईआईटी का एग्जाम भी ऐसा ही है 1 मिनट आईआईटी का जो एग्जाम भी है वो ऐसा ही है हम कितना भी प्रैक्टिस कर ले 2 साल इस बार का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट टॉपर था 2020 का सुमित बेरा रेजोनेंस से उसके 63% मार्क्स आए थे एडवांस और ऑल इंडिया रैंक 366 कंप्यूटर साइंस मिला उसे आईआईटी में
सो बेस्ट ब्रांच उसे मिली है, नासिक डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, फिर भी परसेंटेज 63, 37% का मार्जिन उसके पास भी रह गया था कि वो एग्जाम में कर गया। तो काफी मार्जिन एग्जाम में भी रहना है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और टाइमली तुम्हें बताया भी जाता है किस ऑर्डर में करना है, कौन सा डिस्कशन होगा, क्या होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। बोलो सर अगर सर पर जो हमारे सिलेबस से कट किया है 10th में, जो रिड्यूस सिलेबस है, तो सर जैसे मूल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री से, तो हमको बेसिक्स ही पता नहीं, तो 11th-12th में प्रॉब्लम नहीं आएगा? तुम ये बताओ जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। ये मैं पिछले 2 लेक्चर से मोल कॉन्सेप्ट का ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो आईटीसी है ना, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, 9 10 का बेसिक कुछ बोर्ड्स का और 11 का कुछ बेसिक, यही कवर हो रहा है। तुम बताओ मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन ऑफ मोल्स मेनली ये पार्ट लेता है। एंड आई हैव स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एटम, मोल, मॉलिक्यूल, क्या डिफरेंस है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज हमने नहीं छोड़ी है जो तुम्हारे 9 10 के सिलेबस में होगी। तो मैंने एटम तक को अच्छे से डिफाइन किया है। मैंने बोला ना, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स एंड फंडामेंटल। हम बिल्कुल एज्यूम नहीं कर रहे कि तुमने बहुत अच्छे से किया है, नहीं किया है, क्या है। किया है तो तुम्हारे साथ प्लस पॉइंट है, तुम्हें और ज्यादा अच्छे समझ आएगा। नहीं किया है तो तुम्हें पूरा फोकस होकर बैठना है। तुम्हें मतलब चीजें मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा एक एग्जांपल नहीं 2 एग्जांपल के बाद और अच्छे से समझ में आने लगे। बट हम ये एज्यूम करके कहीं नहीं बैठे ना कि तुम्हें आता है ऑलरेडी। मतलब ये इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, गैसेस स्टेट, फर्स्ट 3 चैप्टर्स। एनसीईआरटी में चैप्टर ही नहीं, इन 3 चैप्टर का बेसिक्स जो 9 10 से रिलेटेड है वही कवर होता है। क्लियर? यस सर। चलो यस सर। सर लिसनिंग। उस बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल सकती? सॉफ्ट कॉपी किस बुकलेट की? आप जो अभी कह रहे थे उसकी। मैं लेक्चर के लास्ट में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। कितने बच्चों ने रेजो सर को एक्सेस किया है? रेजो सर मैंने सर मैंने मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बार। ठीक है, यस सर, आई हैव। मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा रेजो सर, वहां पे सारी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। और अगेन मे बी पॉसिबल कि 1-2 वीक में थोड़ी चीजें नॉर्मल हो। यू कैन आल्सो कलेक्ट हार्ड कॉपी फ्रॉम सेंटर। रेजोनेंस के सेंटर पे हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर सकते हो, बट अभी सेंटर ओपन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है। ठीक है, और अगेन जिस चैप्टर का जैसे आईटीसी चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, आई हैव आल्सो सेंड दैट पीडीएफ फाइल ऑफ दिस। वो मैं ग्रुप पे भेज भी चुका हूँ। रेजो सर पे अवेलेबल है, हार्ड कॉपी सेंटर पर भी है जो तुम्हें मिल जाएगी, और तब तक पीडीएफ फाइल ग्रुप पे सेंड कर चुका हूँ जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो।
सिर्फ परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है क्या? abundance, ABUN, abundance. एक्सक्यूज मी सर, कॉपी करो पहले। हाँ, कोई वर्ड सर में नहीं आ रहा तो पूछो। नहीं सर, वो टेबल हमने बनाया था ना इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के लिए, वो उनका चार्ज, मास वगैरह सब लेके, वो इस बार नहीं बनाने वाले क्या? बनाएंगे, आएगा आएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो। Okay, मतलब सर। थोड़ा आगे पीछे हो रहा है चीजें, बट ठीक है, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग में सब कराऊंगा। ओके सर। सर एम एवरेज है ना वो? M subscript average, average atomic mass, M average. यस सर। देखो, average atomic weight. Now the question is when to define this average atomic weight. What does it mean? हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैन हैव 3 डिफरेंट आइसोटोप्स। एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का H11, H12, थर्ड वन इज H13। अब 3 मास है, विच मास नीड टू बी रिपोर्टेड, कौन सा मास हम रिपोर्ट करेंगे? एक का आंसर तो ये होगा जो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, विच एग्जिस्ट मोर देन 99% उसका मास बोल देंगे, वही ऑलमोस्ट मास होगा। बट what if it is present in substantial amount? All 2-3 exist in substantial amount. हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, 1-2% है इग्नोर कर दो। अब कोई 60-70% है, दूसरा 30-40% है, then we cannot ignore another mass. अब हमें एवरेज रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर एवरेज ऐसा ही है जैसे तुम्हारे एवरेज मार्क्स होते हैं, एवरेज परसेंटेज होते हैं। एक क्लास में 35 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट का वेट है, किसी का वेट है 50 केजी, किसी का 53, किसी का 52, किसी का 60, किसी का 30, सभी वेट को ऐड किया, टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। तो इसका मास, इसका मास, इसका मास। अब क्वेश्चन आता है कौन कितना एग्जिस्ट कर रहा है। परसेंटेज अबंडेंस इज द परसेंटेज एग्जिस्टेंस बाय मोल। इफ यू टेक 100 मोल ऑफ द टोटल, हमने 100 मोल सारे आइटम्स के मिलाकर लिए, तो लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल इसके मोल्स हैं उसमें 95, इसके मोल्स हैं 3, इसके मोल्स हैं 2, तो परसेंटेज अबंडेंस 95%, 3% एंड 5%। द एडिशन ऑफ परसेंटेज इज ऑलवेज 100। तुम्हें बोला गया तुम्हारे परसेंटेज कितने हैं, 85% मार्क्स दैट वी गेट इन लास्ट क्लास। तो 85% आउट ऑफ व्हाट, 100। परसेंटेज टोटल इज ऑलवेज 100। तो सम ऑफ परसेंटेज इज ऑलवेज 100। एक 95 है, दूसरा 3, तो तीसरे को 2 होना ही है। पहले सब्सटेंस का मोलर मास m1, उसका परसेंटेज अबंडेंस a1, दूसरे का m2, m2 मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल में 2, a2, तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये m1, m2, m3। क्लियर? अब हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। 95 एटम्स आउट ऑफ 100 एटम्स हैव 1 मास, तो सारे एटम के मास को ऐड करना है। टोटल 95 एटम्स को 1 टाइम ऐड करोगे तो क्या होगा, 95 into 1 m1a1। जो 2 मास है उसको 3, ऐसे 100 में से 3 एटम्स है विच इज 2 यूनिट मास, तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, तो 2 into 3। थर्ड का मास है 3, ऐसे 2 एटम्स है,
तो 3 + 3 ऐसे 2 टाइम्स सेट करेंगे तो सारे 100 एटम का मास ऊपर आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स 100 A1 + A2 + A3 अप टू लास्ट व्हिच इज 100। क्या ये समझ में आता है एवरेज कैसे निकाला है? या मैं Yes, और कोई Yes, example sir. दे और सकता मतलब Yes, sir. डिनोमिनेटर सर एक बार मतलब repeat डिनोमिनेटर हमेशा 100 ही रहे। हूं? इस एग्जांपल में डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा। ठीक है अभी यस सर। चलो एम एवरेज निकाल के बता दो इसका इस एग्जांपल में। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास फॉर दिस एग्जांपल। 1.07. 1.12. So 1.07. 1.07. 1.07 sir. So 1.07. 1.07. +3. Sir, 1.07. 1.07 is right answer. 95 into 1 plus 3 into 2 plus 2 into 3 upon 100. ऐसे यूनिट ग्राम आएगा ना? नहीं ग्राम नहीं आएगा। एनीवन क्या आएगा यूनिट? Sir, unitless. Sir, it is unitless. Sir, U. Sir, unitless क्योंकि molar. एक मिनट अब हैंड रेस करना है। Unitless. हैंड रेस करना है। चलो हिमांशु बताओ क्या आएगा? Sir, AMU और कुछ भी नहीं चलेगा इससे। ठीक है आर्यन तुम बताओ क्या आएगा? आर्यन शिवाले Sir, unit. U. ये आएगा विदाउट Sir, unitless. Sir, unitless. विदाउट एनी यूनिट यूनिटलेस। हम यही तो बताते आ रहे हैं ना एटॉमिक मास इज यूनिटलेस। और ये तो डिपेंड करता है हमारी कैसी रिक्वायरमेंट है। तुमसे पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम तो तुम एएमयू कर दोगे। व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल एटम ग्राम कर दोगे। व्हाट इज एटॉमिक मास तो सिर्फ इतना ही छोड़ दो। क्लियर? So it should be unitless as we had already seen this thing in the last lecture. Atomic mass is a unitless quantity. It depends on our requirement which unit we want to use. Clear Abhi? Yes. सर कौन सा आइसोटोप का कितना सर अबंडेंस की परसेंटेज दी होगी क्या हमें? हाँ कुछ तो दिया होगा कुछ निकालना होगा। एक क्वेश्चन ये था एक क्वेश्चन में और देता हूं ऐसा। अच्छा क्वेश्चन है वो। सर वैसे ब्रैकेट खाली क्यों? Find percentage of C14 in a sample of carbon-12. 94% abundance दे रखा है C13 and C14. C12, C13, C14 तीन आइसोटोप्स हैं कार्बन। सर C13 का ये नहीं दिया क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन? एक मिनट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ C14 कैलकुलेट करना है। C12 का दे रखा है एम एवरेज दे रखा है। दिस टू इंफॉर्मेशन आर गिवन और इन तीनों का हमें यह पता है कि तीन सब्सटेंस प्रेजेंट है तीन आइसोटोप्स प्रेजेंट।
I don't want answer quickly, I want right answer. और तुम्हें चैट बॉक्स में लिखना है, अनम्यूट करके नहीं बोलना है. सर C13 का भी दिया नहीं क्या कंपोजिशन क्वेश्चन परसेंटेज? इज कंप्लीट. जितनी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन इज कंप्लीट. Is Om Devre or Om Nikam both are same or different Om? सर डिफरेंट. दोनों बच्चे हैं यहाँ पर. ओम देवरे भी एक स्टूडेंट है. यस सर. सर मुझे आंसर एक्सक्यूज मी सर. सुनो बोलो. सर आंसर डाला मैंने. हाँ देखो. जयदीप क्या लिखा है? 80 पता नहीं क्या लिखा है. जयदीप जो भी लिखा है गलत है आंसर. अथर्व दुबे करेक्ट आंसर. अथर्व. उसके बाद समर्थ का करेक्ट है. सलील करेक्ट आंसर. तन्मय करेक्ट. चलो. M average 12.08, M1 12, A1 94, M2 13, A2 अब तक हमें नहीं पता है. A3 ये भी नहीं पता है हमें. A3 तो लिख ही देते हैं. चलो 14 into A3 upon sum of A1 plus A2 plus A3 100. Can we say that A1 plus A2 plus A3 is 100? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस A1 सर. कितना है? Yes, sir. 94. Yes, sir. A1 को 94 लिखो. A2 plus A3 हो जाएगा 6. Can you say that A2 will be 6 minus A3? Yes. क्या हम Yes, sir. A2 को 6 minus A3 लिख सकते हैं क्या? 6 minus A3. तो काफी बच्चों को जो कंफ्यूजन हो रहा था ना, यहाँ पे A2 भी नहीं दिया. A2 तो दिया होना चाहिए. So sum of fraction, sorry, sum of percentage is 100. इसका यूज करना. One equation, two equation simultaneously solve करना. A3 का वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेना. When you solve for A3, A3 2 आ जाएगा. Is that okay, Arpita? Yes, sir. Arpita Nikam is there? Arpita, Archita, Arshita, Archisa, sorry. तनिष क्या मैसेज है? A3 2 कैसे? इसको सॉल्व करने पे आया. A3 मतलब बता नहीं रहा हूं मैं. M1 A1 plus M2 A2, A2 को रिप्लेस किया 6 minus A3 से. A3 A3. Then when you solve by multiplying this, you will get A3 2. कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैं. सर 2% होगा ना?
हाँ परसेंटेज ही, वो तो उसमें क्या है। चलो चले हम आगे। यस सर। ओके कुछ क्वेश्चंस जो हैंडआउट शेयर किया था उससे करते हैं हम अभी। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं वो। जस्ट यस सर 1 2 मिनट। आता है। सर फाइनल आंसर वरद का मैसेज सर हाउ a2 plus a3 is 6। वरद a2 plus a3 6 नहीं है, a1 plus a2 plus a3 will be 100। वरद क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। अब a1 94 दे रखा है तो a2 a3 मिलकर 6 हो जाएंगे, टोटल तो 100 आना है ना। इज दैट ओके? यस सर। चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 and 13 based on calculation of number of moles। 12 and 13 सर हमें ये आंसर आपको भेजना है। क्या अभी सॉल्व करना है? You need to solve it right now। और जो भी आंसर आएगा चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। मिताली, मिहिर, मृत्युंजय समझ में आ रहा है तुम्हें इतना? हाँ सर आ रहा है। यस सर। सर। हाँ बोलो। 11 सॉल्व करना है क्योंकि आप स्लाइड चेंज कर रहे हो, समझ रहा नहीं कौन सा यस करना सर है। वो समझा नहीं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, है ना वो। अभी ठीक है? यस सर।
यस सर 12th and 13. 12 and 13 करना है ना? हाँ ये हाँ 12th सर and 13. 12 का आंसर भेजा मैंने। सर मैंने भी दोनों भेजा। सर हाँ मैंने भी भेजो, भेजा। काफी बच्चों ने भेजा है, वो लास्ट में देखते हैं, हम क्रॉस चेक करेंगे उसे। सर यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं ना? नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, बोथ आर डिफरेंट थिंग। सर आ गया, हो गया सर। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं अभी स्क्रीन पर ही, चेक करो, क्रॉस चेक करना आंसर। सर फर्स्ट 12th क्वेश्चन, number of molecules in 16 gram of methane, we have two definition of number of moles. पहला definition है n upon Na and the second definition is weight by molar weight. So when you equate this two definition, why we are equating definition? weight दे रखा है, number of molecule पूछा है, ये पूछा गया है, weight दिया है, तो definitely कहीं ना कहीं हमें इन दो definition को equate करना होगा। Can we write number of molecule is weight upon molar weight into Na, Avogadro's number। इस Na को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम तो n आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। वेट कितना है? 16 ग्राम। मोलार वेट फॉर मीथेन, मीथेन आई थिंक सभी को पता होगा, बाय चांस नहीं पता है, मीथेन इज CH4, so 16 upon 16 molar weight for methane is 16 into 6.02 10 to the power 23, so इसमें आ जाएंगे Na molecules 6.02 to 10 to the power 23 molecules for 12। सर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया उसे? ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इन दो फॉर्मूले को इक्वेट किया है। मैं फिर से लिखता हूं, एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का n अपॉन Na, सेकंड फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलार वेट। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट n। so when you use this two formula, n weight upon molar weight remains as it is and you can cross multiply by Na। इस Na को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। Is that okay now? Yes. यस सर। सर फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है 12 का 6.02 10 to the power 23। सर नेक्स्ट का आंसर 0.005 है ना? चेक करना, मैं सॉल्व करता हूँ अभी। अब सर 0.005 3.01 बजाय बोल, एक मिनट, बजाय बोलने के तुम क्रॉस चेक करना जब मैं सॉल्व करूंगा। 13 क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। सिमिलर क्वेश्चन है 12 जैसा ही। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट यू नीड टू फाइंड आउट, वेट बाय मोलार वेट इनटू Na करना है हमें। क्लियर? सो वेट कितना है हमारे पास? 0.09 ग्राम ऑफ वाटर। मोलार वेट फॉर H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 8, टोटल सॉरी ऑक्सीजन 16, टोटल 18 मोलार वेट हो गया इनटू Na। 6.02 10 to the power 23 का मल्टीप्लाई करना। अब ये आ जाएगा 9/18 is 2 और वो आएगा 10 to the power -2, so 3.01 10 to the power 21 atoms after solving this। क्या ये सॉल्व करके पूरा बताऊं या समझ में आ जाएगा? सर आ गया। यस सर आ गया। यस सर। ठीक है, होमवर्क बता दूं मैं इसमें से अब? यस सर। यस सर। डेफिनेटली ये मैं फर्स्ट टाइम होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैं एक मिनट यार मुझे बोलने दो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें मे बी पॉसिबल कि एकदम क्लिक ना करे,
ये कैलकुलेशन ऑफ मोल कंफ्यूजिंग होता है, एक बार में डेफिनेटली 100% समझ में नहीं आया होगा, बट सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब करेंगे समझ में आएगा। क्या इसका मतलब हम फर्स्ट टाइम नहीं समझे? तो तुम जब भी फर्स्ट टाइम समझने जाओगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो तुम जितना एफर्ट अपने एंड से डाल सकते हो डालो। आंसर आधे भी आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सारे डाउट्स क्लास में लूंगा। चलो होमवर्क में तुम्हें एक बार बता देता हूँ कितना रहेगा। वन टू 20 एवरीथिंग ऑन दिस पेज। इस पेज पे सारे क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर? और भी मैं बता देता हूं, एंड ऑल्सो कितने क्वेश्चंस दूं? 20 इनफ है या और भी दूं? सर हम कर पाए वैसे दो। करेंगे सर। चलो 20 questions from here and 7 questions from here, part 2, total 27 questions. Clear? एक्सक्यूज मी। यस Yes. सर ये जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है इनमें नोटबुक में कुछ सॉल्विंग करने की ज्यादा जरूरत तो नजर नहीं आती सर, तो ये यहाँ पे करेंगे तो चलेगा क्या? अब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ पे करोगे तो तुम्हें कैसे करना है मैं बता देता हूँ। होमवर्क नोटबुक में तुम्हें लिखना है एक्सरसाइज पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 1, यू डोंट नीड टू राइट द क्वेश्चन। अब तुम्हारा आंसर आता है मान लो सी, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। तुम इतना भी लिख दोगे, इवन पूरा स्टेटमेंट लिखोगे या सी भी लिख दोगे, दैट इज इनफ। बट मैं जब चेक करूंगा मुझे पता लगना चाहिए कि तुमने आंसर लिखा है। ओके सर। ठीक है? ओके कुछ सर। केस में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, कुछ केस में सॉल्व करने की जरूरत भी होगी। तो जैसे 6th क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके पूरा कैलकुलेशन करना है। ठीक सर है? जो क्वेश्चन ना आए उसके लिए ब्लैंक पेज छोड़ सकते हैं ना? हाँ डेफिनेटली, जो नहीं आया उसके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ो, वो डाउट में तो मुझसे पूछो। सर ये पीडीएफ रेजो सर पे है क्या? हाँ अब आते हैं हम रेजो सर पर। तो रेजो सर के बारे में जिसको नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ।